کا ایک فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے درمیان تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے ناموں کی لسٹیں اللہ کے یہاں بن چکی ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی اگر لسٹیں بن چکی ہیں تو پھر ہمیں عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ نتیجہ تو لکھت کے مطابق، رجسٹر کے مطابق ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل کا فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی عمل کے فائدے کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ نقطے کی بات ہے، اسے سمجھ جائیں۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ کو جیتے جی اندازہ لگ جائے گا کہ آپ کا کس رجسٹر میں نام لکھا ہوا ہے۔ دنیاوی امتحان کے حوالے سے تو تجربہ کار لوگ اندازہ لگاتے ہیں، گیس لگاتے ہیں کہ ممکن ہے کہ فلاں سوال امتحان میں آ جائے، فلاں سوال امتحان میں آ جائے، اور طلباء ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں جو آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں اس میں امتحان لینے والے نے سوال بتایا ہے کہ یہ پوچھوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں جیتے جی پتہ چل جائے کہ آپ کا کس لسٹ میں نام لکھا ہوا ہے، کس لسٹ میں نام لکھا ہوا ہے، تو اس علامت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، اس علامت کو اپنے اندر دیکھیں۔ یہ علامت اگر آپ کو ملتی ہے تو آپ کو اس کے ذریعے اندازہ لگ جائے گا کہ آپ کس کھاتے میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تم کام کی تگودو کرو، کوشش کرو، فرما برداری کرو۔ جب تم فرما برداری کرو گے تو غور کرنا کہ اللہ تمہارے لیے کون سے راستے کی آسانی کر رہا ہے، کون سے راستے کی آسانی کر رہا ہے۔ اگر تو درس دروس میں، فرما برداری میں، سخاوت میں، حلقہ احباب نیک صالحین میں، مسجد کی ہمسائیگی میں، نمازوں میں آپ کی دلچسپی بنتی ہے، جی لگتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، انتظار لگی رہتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا نام اس لسٹ میں ہے جنہیں اللہ نے جنتی بنایا ہے۔ دنیا میں نیکی کا دروازہ کھلا ہوا ملنا یہ علامت ہے کہ بندے کا نام جنتیوں میں لکھا ہوا ہے۔ اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تم عمل کرو، اللہ سہولت دیتا جائے گا تمہاری منزل کی طرف۔ تم عمل کرو، اللہ تمہاری منزل کی طرف سہولت دیتا جائے گا۔ یہی مضمون قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے، آپ توجہ کیجئے، بات بالکل کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ کچھ لوگ ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، جس دن میں انہیں بنا رہا تھا اسی دن میرا پروگرام یہ تھا کہ میں انہیں جہنم میں پھینکوں گا۔ جب وہ بن رہے تھے اسی وقت یہ طے تھا کہ انہیں ڈالنا جہنم میں۔ وَلَقَدْ یقیناً ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے پیدا کیا اس لیے کہ جہنم کا ایندھن بنے۔ ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ ان پیدا ہونے والوں کو جہنم میں ڈال دے اور جہنم کا ایندھن بنے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے انسانوں اور جنوں کو ہم نے جب بنایا تو اس لیے بنایا کہ یہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا، معراج کی حدیث میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام سے، دائیں بھی لوگ ہیں بائیں بھی لوگ ہیں، دائیں والوں پر روشنی ہے، بائیں والوں پر اندھیرا ہے۔ آدم علیہ السلام دائیں طرف والوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف والوں کو دیکھتے ہیں تو اداس ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کیا قصہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ ارد گرد ہے جو یہ نسم بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے،
जो आपको दिखाई गई है, दाईं तरफ वाले जन्नती हैं, बाईं तरफ वाले जहन्नमी हैं। जिन पर रोशनी है, नूर है, हिदायत की अलामत है, ये जन्नती हैं। जिन पर अंधेरा है, तारीकी है, स्याही है, ये जहन्नमियों की अलामत है। अपनी औलाद में जन्नतियों को देखते हैं, खुश होते हैं, अपनी औलाद में जहन्नमियों को देखते हैं, परेशान होते हैं। गोया तय तो पहले ही हो चुका है कि किसने जन्नती बनना है और किसने जहन्नमी बनना है। हदीस में, मुस्लिम में आता है, 40 दिन तक कतरे के सूरत में बतने मादर में इंसान रहता है। 40 दिन तक जमे हुए खून की शक्ल में इंसान बतने मादर में रहता है और 40 दिन तक वो चबाए हुए गोश्त की शक्ल में। इस दौरान उसकी शक्ल और वो मुज़क्कर है, मुअन्नस है, खुशकिस्मत है, बदकिस्मत है, कितना जिएगा, रिस्क कितना मिलेगा, ये सारा लिख दिया जाता है। ये सारा लिख दिया जाता है। जब सारा तय हो गया, उसमें यह भी लिखा जाता है कि ये खुशकिस्मत होगा या बदकिस्मत होगा, यानी जन्नती होगा या जहन्नमी होगा। दुनिया सब कुछ हो और जन्नती ना हो बंदा तो वो खुशकिस्मत नहीं होता। बशक़ीयुन औ सईदुन, यह भी लिखा जाता है कि खुशकिस्मत है या बदकिस्मत है। अब अल्लाह को पता किसके बारे में अल्लाह ने क्या लिखा है। निशानी इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम। जिन्हें हमने पैदा जहन्नुम में जलने के लिए किया था, उनकी निशानी यह है कि दिल होंगे, धड़क रहे होंगे, हार्ट बीट ठीक होगी, ब्लड प्रेशर में कोई किसी किस्म का मामला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, सेहत बिल्कुल ठीक होगी। ला यफ़क़हून बिहा, लेकिन दिलों के ज़रिए समझना, दिलों के ज़रिए समझ वो ख़त्म, सूझबूझ नहीं है, अक़ीदा नहीं है, ईमान नहीं है, तौहीद नहीं है, अल्लाह की तरफ रग़बत नहीं है, बंदगी का शौक़ ज़ौक़ नहीं है, बाकी सब ठीक है। सेहत के एतबार से दिल सेहतमंद है और जो रिस्पॉन्स उसने रूहानियत के एतबार से देना था वो नहीं देता। आखिरत का शौक़ नहीं, आखिरत की रग़बत नहीं। ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, आँखें हैं, आँखों से देखते नहीं हैं। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, कान है, कानों से सुनते नहीं। अल्लाह क्या कहना चाहते हैं आप? दिल है, सोचते नहीं, आंखें हैं, देखती नहीं, कान है, सुनते नहीं, मतलब क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, साफ मतलब है। मतलब यह है, उलाइका हुमुल गाफिलून, वो गाफिल है। गाफिल वो होता है जिसे परवाह ना, उसका बेड़ा डूब जाए, उसे परवाह नहीं है, वो जन्नती बने जहन्नमी बने, परवाह नहीं, वो अच्छाई करे बुराई करे, परवाह नहीं है, गाफिल है, लापरवाह है। उसे आखिरत के हवाले से कोई जिम्मेदाराना सोच नहीं, कोई संजीदगी नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई तगदो नहीं करता, ये चीज़ नहीं है उसके अंदर। अब जिस बंदे में इस तरह का लाउबालीपन है आखिरत के हवाले से, उसके लिए ये घंटी है कि उसका नाम किस रजिस्टर में लिखा हुआ है। अगर वो दूसरों के रजिस्टर में लिखा होता जिनको अल्लाह ने जन्नती बनाया है, तो ये बात सुनता आंखें बहने लग जाती, ये बात सुनता सुनता और उस पर अमल करने की कोशिश करता, ये कुरान खोलता, उसे पढ़ने की कोशिश करता, सखावत करता तो इसे परेशानी कोई ना होती, मस्जिद के साथ इसका दिल लगता, हल्का अहबाब इसके दीनदार होते। ये सारा माहौल देना इस बात की निशानी होता कि अल्लाह बंदे से मोहब्बत कर रहा है। तो सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु का एक असर फतहुल बारी के हवाले से मैंने यहाँ लिखा था। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि कुछ निशानियां हैं जिनसे बदबख्त इंसान पहचाना जाता है। उनमें से पहली निशानी यह है जमूदुल ऐन, आंखें सूख जाती हैं, आंखें सूख जाती हैं। हादसे हुए, मौतें हुई, शहादतें हुई, वफातें हुई, लोग भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, और ये है इसकी आंख सूखी हुई है। अल्लाह महफूज फरमाए। आंख सूखी हुई होना ये बदबख्त इंसान की निशानी है, आंखें सूखी हुई होना। और दिल का सख्त हो जाना ये भी निशानी है बंदे की बदबख्ती की। और अल इक़बाल वाला दुनिया, अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, दुनिया पर मर मिटना, दुनिया के लिए ताल्लुक बन रहे हैं, तोड़ रहा है, दुनिया के लिए जीता है, दुनिया के लिए मरता है, दुनिया से बाहर उसकी सोच ही नहीं जाती है। अल्लाह अकबर। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं ये भी अलामत है। और आखिरत का शौक ना होना, आखिरत का शौक ना होना। जिस बंदे में ये चार निशानियां देखो, आंखें उसकी सूखी हुई है, दिल उसका सख्त हो गया है, टस से मस नहीं होता, आखिरत की उसे रग़बत नहीं है,
दुनिया पर वो मर जाता है, समझ जाओ कि ये बंदा बदबख्त लिखा हुआ है। ये ऐसी निशानियां हैं कि अक्सर व बेशतर निशानियां, अल्लाह हमें महफूज फरमाए, सबके पर्दे रखे, वो हमारे अंदर पाई जाती हैं, हमारे अंदर पाई जाती हैं। इन निशानियों को ख़त्म करने का तरीक़ा यह है प्यारे भाइयों, ख़त्म करने का तरीक़ा यह है कि असल में हमारा दिल है ना, जो वो पूरा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। दिल का काम था पैगाम देना, ज़मीर को जगाना, शर्मिंदा करना, आखिरत को शौक़ दिलाना, वगैरह वगैरह। दिल अब वो काम कर नहीं रहा क्योंकि हम दिल को खुराक नहीं दे रहे। बंजर हो गया है, जंग लग गया है, आलूदा हो गया है, उस पर जंग की तहें चढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से दिल ने दवा कर दिया है। बंदे को वो खैर का पैगाम ही नहीं देता। दिल को सेहतमंद बनाए, दिल सेहतमंद हो जाएगा, गलती पर शर्मिंदगी होगी। दिल सेहतमंद हो जाएगा, नमाज छूटने पर बेकरार हो जाएगा। दिल सेहतमंद होगा, बीमार को देखकर बंदा बेचैन हो जाएगा और तड़पने लग जाएगा। दिल सेहतमंद होगा, कमज़ोर को देखकर बंदा उसके लिए दुआएं कर रहा होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिन्नतें कर रहा होगा। दिल सेहतमंद होगा तो बंदे की अल्लाह के साथ मोहब्बत बनेगी। दिल को सेहतमंद कैसे करना है? तिलावत करें कसरत से, तिलावत करें, तिलावत सुने कसरत के साथ। और मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ प्यारे भाइयों, बस ये बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जिक्र जब भी करें और तिलावत जब भी करें तो कोशिश करें कि आपको तन्हाई हो, मोबाइल को बंद करके परे रख दें। आप पूरी यकसुई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, सारे झंझटों से, यह दुनिया पहले भी कायम थी, बाद में भी जब तक अल्लाह इसे रखेगा, कायम रखेगा। आप इसको उठा कर नहीं खड़े हुए, इससे जान छुड़वा कर आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, जितना आपको अल्लाह टाइम देता है, आप पूरी यकसुई के साथ जब आप तिलावत कर रहे हों, जब आप जिक्र कर रहे हों, आप यूँ महसूस करें कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, आप अल्लाह से सरगोशी कर रहे हैं, आप अल्लाह से मुनाजात कर रहे हैं, आप अल्लाह की तारीफ़ें कर रहे हैं, आप अल्लाह की मिन्नतें कर रहे हैं। आप इस अंदाज की डोज 7 दिन दे के देखें। अगले जुमे जब आप जुमा पढ़ने के लिए आएंगे तो उधर बात होगी और उधर आपकी आंखें बहने लग जाएंगी और अमल का शौक़ पैदा हो जाएगा। और माशाअल्लाह वो सरकशी और वो इनाद और वो बाकी जो अखलाकी खराबियां हमारे अंदर आ गई हैं, वो अल्लाह की रहमत से टूटने लग जाएगी। हम इसे खुराक नहीं देते, इसलिए हमारा जितना बड़ा नुकसान होता जाए हमें उसकी परवाह नहीं होती है। अल्लाह ने जो कुछ कहने सुनने की तौफीक दी है, अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।